Hello everyone. So our today's subject is database management system and we are covering the database concepts. So today we will cover two topics in the database concepts, that is what is database, and the second one is what are the database properties. All right. So see what is database. Database is a collection of related data. Okay, here the term related data is very important. In the previous session we have already learned what is data. Basically data is the collection of raw facts and figures that can be recorded, and that could be the collection of values like character, number, audio file, video, or any image. Okay, so that we have already learned in the last video. So here in the database we have said that it is a collection of related data. Okay, suppose we have a list of subject names, then similar fashion we have a list of hospital names. Okay, and one more list is of price list of cars. So if we look all this data, then we can say that this is a collection of data. All right. So if we combine all this data and we'll try to build a database, is it possible? No. We cannot form a database with the help of this data. Why? Because this is not a related data. For building a database, the data should be related data. All right. So database is a collection of related data so that it can be easily accessed and managed. Okay, so अगर हम कोई database बना रहे हैं तो हम क्यों बना रहे हैं? There must be some reason behind that. Okay, means हमारा कोई टास्क फुलफिल होना चाहिए, या हमारा कोई क्वेश्चन है उसका हमको आंसर मिलना चाहिए, या उससे हमको कोई इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए. ऑलराइट, और ये तभी होगा जब हमारा डेटा एक दूसरे से रिलेटेड होगा. ओके, एग्जाम्पल के फॉर्म में हम एक ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस लेते हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या हो सकता है? लाइक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ होते हैं, देन वहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, देन उन डिपार्टमेंट को कौन मैनेज कर रहा है. ओके, सो एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट एंड मैनेजर. If we look at this data, we can find that this data is interrelated to each other. Okay, so अगर ये डेटा हम कंबाइन करेंगे तो ये एक डेटाबेस फॉर्म करेगा. ओके, एंड यस, इस डेटाबेस के बेसिस पे हम कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं और वी कैन से एक्सेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, वी कैन फाइंड आउट दैट कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है. ओके, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कौन मैनेज कर रहा है. ओके, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. सो सच टाइप ऑफ डेटाबेस फुलफिल एनी पर्टिकुलर requirement. In the similar fashion, we can say that यूनिवर्सिटी डेटाबेस. एक यूनिवर्सिटी डेटाबेस में क्या क्या होता है? एक यूनिवर्सिटी में हमारा स्टूडेंट्स होते हैं, देन टीचर्स होते हैं. ओके, देन कौन कौन से वहाँ पे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, है ना. तो ये सारे अगर हम डेटा को देखें तो हम कह सकते हैं कि ये जो डेटा है एक दूसरे से रिलेटेड डेटा है. सो इफ़ यू कंबाइन ऑल दिस डेटा, देन it can form a database. And in a similar fashion, we can extract the information like कौन कौन से स्टूडेंट्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं. ओके, कोई पर्टिकुलर टीचर कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहा है, एंड कौन से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है.
इस तरह की इंफॉर्मेशन हमको डेटाबेस से मिलती है. दैट्स वाई वी कैन फाइंड इन द डेफिनेशन दैट database is a collection of related data so that it can be easily accessed and managed. Okay, so next we will study database properties. Okay, database की properties क्या क्या होती हैं. So a database is a representation of some aspect of the real world, also called mini world. Whenever there are changes in this mini world, they are also reflected in the database. See, database में जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस था, वहाँ पे कुछ जो डेटा था उसको हम कह सकते हैं कि वहाँ पे एंटिटीज़ थी. बेसिकली एंटिटीज़ को डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, बट फॉर एज ऑफ नाउ वी कैन सी दैट देयर आर सम रियल वर्ल्ड एंटिटीज़. ओके, सो जब भी कोई चेंजेस एंटिटीज़ में होते हैं तो वो सारे चेंजेस हमारे डेटाबेस में भी रिफ्लेक्ट होने चाहिए. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय काम कर रहा है, बट अगर वो एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देगा तो डेटाबेस में वो रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए. मीन्स एक्टिव एम्प्लॉयज़ की लिस्ट से उसका नाम वहाँ से हट जाएगा. सो सच टाइप ऑफ चेंजेस should be reflected in the database. Okay, so next property is that it is designed, built and populated with data for a specific purpose. That I have already discussed that किसी भी डेटाबेस को बिल्ड करने के पीछे एक टास्क होता है या पर्पस होता है. ऑलराइट, सपोज अगर किसी स्टूडेंट को किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो वो कैसे लेगा. मीन्स वो कुछ चेक करेगा, मीन्स उस कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री चेक करेगा. मीन्स लास्ट ईयर्स के प्लेसमेंट कैसे गए हैं, वहाँ की हॉस्टल फैसिलिटीज़ कैसी हैं, वहाँ के टीचर्स का एक्सपीरियंस कैसा है, देन एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन कैसी है. ऑलराइट, सो ये सब चेक करेगा. तो ये सब कैसे चेक करेगा वो. जनरली कॉलेज क्या करते हैं कि अपना एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में ब्राउचर पब्लिश कर देते हैं और उसमें वो सब शॉर्ट फॉर्म में डिटेल्स देते हैं. तो वो वहाँ पे वो डेटा कैसे लाते हैं, वो डेटा अपने डेटाबेस से कैप्चर करते हैं. कैसे कैप्चर करते हैं, मीन्स वहाँ अपने वो डेटाबेस को एक्सेस करके वो सारी डिटेल्स निकालते हैं और तब वो पब्लिश करते हैं. तो वाई दे आर पब्लिशिंग, बिकॉज देयर इज सम स्पेसिफिक पर्पस so that they can represent their performance in front of others. Like this is just an example. We can find many examples here. Okay, so our purpose should be fulfilled. Then next is it can be of any size and complexity. See, डेटाबेस हमारा अगर छोटे ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस है तो वो छोटे साइज़ का होगा. फॉर एग्जांपल हम बैंक का एग्जांपल लेते हैं. अगर किसी बैंक में 50 कस्टमर हैं एंड दूसरा बैंक है उसके कस्टमर अबाउट 1000 कस्टमर हैं. ओके, सो जो 50 कस्टमर का बैंक है उसका डेटाबेस छोटा होगा एंड जो बैंक जिसके 1000 कस्टमर्स हैं उसका डेटाबेस बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस बैंक. सो द कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी, जिसका साइज़ छोटा है उसमें लेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी और जिसका साइज़ बड़ा है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा होगी. सो इट कैन बी ऑफ एनी साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी. देन नेक्स्ट इज इट कैन बी मेंटेन्ड मैनुअली और इट मे बी कंप्यूटराइज्ड. सी, जनरली जो हमारा डेटाबेस होता है उसको हमें मेंटेन करना पड़ता है. या तो हम उसको मैनुअली मेंटेन कर सकते हैं या फिर कंप्यूटर के थ्रू हम उसको मैनेज कर सकते हैं. मींस जो भी चेंजेस हैं या जो भी अपडेशन है वो हम क्वेरी के फॉर्म में या कमांड के फॉर्म में हम फीड करते हैं एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट कमांड और क्वेरी द डेटाबेस, जो हमारा डेटाबेस है वो अपडेट हो जाता है. सो दैट्स वाई
It can be maintained manually or it may be computerized. Alright, so these are the database properties. So आज के सेशन के लिए इतना ही. सो आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा. थैंक यू.